Good afternoon, namaste, sat sri akal, everyone. So let me introduce our key speakers today. So it's Dr. Ashima Sharma. She is a medical officer in Punjab, and Dr. Parul Vishwakarma. She is medical officer serving in Uttar Pradesh. So let me start with this session by telling something about other states. So there are many other states who are like implementing Ayurveda along with modern system of medicines in managing coronavirus, which are like Kerala and Gujarat. So the southern state of Kerala has won global acclaim by interlinking the administrative framework of traditional medicine system in the state with its public health administrative system to aggressively combat the virus. The task force has proposed to rename the dispensaries of Indian system of medicines as Ayur Raksha clinics. It is pretty awesome name, and they are like pretty. आवाज ही नहीं आ रही. They are handling this coronavirus in a very awesome way. And second, I want to tell you about Gujarat. So Gujarat has implemented this Ayurveda at their state level. So recently, Gujarat Principal Secretary Health and Family Welfare in her speech claimed the benefits of Ayurveda. She told in her speech that certain measures were taken by state, like inclusion of Amrit by Sanshamni Vati arsenic album, which is like preparation of homeopathy, and distributed by government free of cost to all quarantine people who came in contact with positive COVID patients but didn't develop the symptoms yet. So principal secretary told them during this experiment, they have experimented on 6,000 people, and out of which only 11 came positive. So this shows how effective was Ayurvedic medicines. Further research is definitely required to claim the exact research, because of which Ayush Ministry recently collaborated with ICMR and CSR and started clinical trials of some Ayurvedic medicines like Ashwagandha, Guduchi, Yashti Madhu, Pipli, and some polyherbal formulation. They have launched Ayush Sanjeevani mobile app also, which is developed by Ministry of Ayush, which will generate useful data on acceptance and usage of Ayush advocacies, and it will measure its impact among population. So it's a pretty amazing work which is going on in Ayurveda. So let us hear from our medical officers how other states are doing and what effective measures government is doing, and is it Ayurveda really effective in coronavirus. So I would like to welcome Dr. Ashima Sharma, who is medical officer in Punjab and doing pretty awesome work there. So Ashima, over to you. So you have to unmute yourself, Ashi. नमस्कार सभी को. तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आयुर्वेद जो है कोरोना की महामारी में जो है प्रिवेंशन के रूप में जो है हमें कैसे मदद कर सकता है, और इसमें जो है हमारी पंजाब सरकार जो है इसमें कैसे जो है कौन से जो है स्टेप्स ले रही है, और क्या जो है इसमें आज हम जो इस महामारी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय जो है करते जा रही है. तो इसमें सबसे पहले जो है हमारी पंजाब सरकार का जो आयुष विभाग है, डायरेक्टोरेट ऑफ आयुर्वेदा है चंडीगढ़ से, उनकी तरफ से जो है एक आयुष गाइडलाइंस जो आयुष एडवाइजरी है वो हर एक जो है ओपीडी में जो है वो डिस्प्ले की गई है. जैसे कि जो गर्म पानी पीना है, जैसे खांसी हो रही है तो लौंग पीसकर थोड़ा सा शहद के साथ लेना है, स्टीम इनहेलेशन है बताएगी, भांप लेना है, या नस्से करना है, नस्से यानी तेल जो है नाक में डालना है. तो ये जो है चीजें ये बताई जा रही है कि ये बैरियर्स हैं जो कि हमारा जो है कवच है, क्योंकि इस महामारी का अभी तक कोई भी चिकित्सा जो है अभी तक हमारे निश्चित रूप से सामने नहीं जो है आशिमा जो है आयुर्वेदा जो है आगे आयुष मंत्रालय की तरफ से ये जो है गाइडलाइंस जो है हम अपने जो पेशेंट्स में रोज जो ओपीडी में आ रहे हैं उनको बताई जा रही हैं, और उनके साथ ही जैसे कि जो हाइजीन जो है हमने फॉलो करना है उसके बारे में भी बताया जा रहा है. इसके साथ ही जो है आयुष की कुछ जो है मेडिसिन जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है वहां के क्वारंटाइन जो किए गए पेशेंट्स हैं जो पंजाब में, और इसी प्रकार से जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिसिन जो है हमारे सारे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स की टीम उपवैद जो है वो सारे मिलकर जो है ये कार्य कर रहे हैं, और इनके तक जो है हमारी इम्यूनिटी जो है बेसिकली जो है हमें जो कोरोना का जो महामारी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है अफेक्ट सबसे पहले जो है वीक जो है उस जो वीकर इम्यून सिस्टम है उससे अफेक्ट करता है. तो इसको जो है बचाने के लिए जो है काफी जो औषधियां जो है
वो 5 मेडिसिन हैं वो हम यहाँ पे वितरित कर रहे हैं, जिनमें है अगस्त्य हरित की है, और उसके साथ है जिसमें कि जो हरित की है जिसके हरड़ कहते हैं, जिसमें पिपली है, और इसके साथ ही बहुत सारी औषधियां हैं जो अगर खांसी हो तो 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन में जो है ये जो रसायन औषधियां है, इसमें जो ब्रह्म रसायन है उसमें ब्रह्मी है, आंवला है, हरितकी है, वासा, हल्दी, ऐसी काफी जो है इसमें औषध द्रव्य डाले गए हैं, जो कि 1-1 चम्मच आप सुबह शाम लें तो मानसिक विकार और जो भी हमारी जो आज का श्वास है या जो भी है हमारा वीकनेस जो कुछ लोग फील करते हैं, तो उसमें जो है हम ब्रह्म रसायन का जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो है वो है संशमनी वटी, जिसमें मुख्य रूप से गिलोय ही है, और जो गिलोय का हम सब आजकल सभी जानते ही है कि गिलोय जो है एक इम्यून बूस्टर की तरह हमारे सामने जो है एक ये हम इसको यूज कर रहे हैं, और इसका जो है आम रूप से जो है हमारे घरों में, गार्डन्स में जो है इसको जो है आराम से लगाया जा सकता है, और इसकी जो वो बेल है उसको जो हम यूज कर सकते हैं। संशमनी वटी जो है इसमें जो गुडुची का जो इम्यूनो बूस्टर ही नहीं, ये एंटी जो है ऑक्सीडेंट की तरह भी जो है इसके साथ जो है काम करती है। जो भी हमारे शरीर पर पोल्यूशन का प्रभाव है, या जो हम आजकल केमिकल्स या कुछ भी तरह के पेस्टिसाइड या कुछ भी यूज हो रहे हैं, तो दुष्प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है इनका, तो वो गिलोय और ऐसे ही इसके साथ और भी अन्य जैसे अश्वगंधा है, मुलेठी है, हल्दी है, तुलसी है, जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी है, और साथ ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल है। तो इन पे जो है रिसर्च CSIR की तरफ से इनकी जो है प्लांट से स्टडी जो है करी गई है, तो उनसे जो है इनके रिजल्ट्स जो है बहुत ही अच्छे हमारे शरीर पर आते हैं। इसके साथ ही जो है उसके बाद है जो व्योषादि बटी। व्योष का अर्थ है इसमें त्रिकटु डाला गया है, शुंठी है, काली मिर्च है, पिपली है, दालचीनी है, और जो है तेजपत्र है। तो इसमें व्योषादि बटी जो है ये चूसने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि जिसको कि गले में खराश लगती है या गला सूख रहा है या कुछ ऐसी इरिटेशन लगती है, तो उसमें भी औषधि बटी को जो है हम दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि उसकी जो है ये प्रभाव जो है इस पर कम हो सके। और इसके बाद जो है आयुष 64 टैबलेट्स हैं, इसमें की चिरायता है, कुटकी है, ऐसी जो हर्ब्स हैं जो कि बुखार होने पर या बॉडी एक जिनको फील होती है शरीर में दर्द होने पर, तो इनको जो है 2-2 गोलियां जो है 3 टाइम जो है आप ले सकते हैं। जब भी जो है आपको अगर लगता है कि हमें जो है ज्वर हो रहा है या ऐसे, या फिर इन्हें एज प्रिवेंटिव तरह से आप रोज 2-2 गोलियां ले सकते हैं। इसी के साथ ही इन मेडिसिन को साथ जो है हमारा जो एक डाटा कलेक्शन भी साथ में किया जा रहा है। जैसे जिस भी हम फ्रंटलाइन वर्कर है, क्वारंटाइन पेशेंट है, जिनको भी हम ये मेडिसिन दे रहे हैं, उनका कंसेंट फॉर्म लेके उसके साथ एक परफॉर्मा भरा जा रहा है, जिसमें कि उसे जो है 14 डेज का ट्रीटमेंट है। पहले 1 वीक का देते हैं उन्हें, फिर सेकंड वीक का जो है उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, और उसके साथ ही उनका जो है हम फीडबैक ले रहे हैं कि अगर किसी को ये सिम्टम रहे हैं, कि अगर किसी को जो है गले में दर्द रहा है या उसको सोर थ्रोट रहा है या किसी को जो है खांसी रही है, तो वो इन दवाइयों के सेवन से उनको कितना आराम मिला है, तो इसका जो है डाटा कलेक्शन भी हम साथ साथ जो है कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो है ये भी बताया जा रहा है कि ये जो दवाइयां हैं, औषधियां हैं, इनका जो है आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से ही ये जो है दवाइयां ले, क्योंकि जैसे इसमें अगस्त्य हरित की ब्रह्म रसायन है, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए लेनी मुश्किल होगी, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा जो है शर्करा होती है, मधु है, तो इसलिए उन्हें जो है परामर्श करके ही आयुर्वेद डॉक्टर से ये दवाइयां ले सकते हैं। और इसके साथ ही और भी जो है आयुष संजीवनी ऐप जो है अभी जो है रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसमें जो है हम पेशेंट्स के जो है प्रोफाइल जो है बनाने का प्रोसेस जो है अपडेट हो रहा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि जो भी पेशेंट्स हमारी ओपीडी में आ रहे हैं, अगर उन्हें फ्लू के सिम्टम्स हैं, जो भी आजकल ये महामारी है उसमें जैसे भी कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ और उनको दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें जो है ये दवाइयां कैसे उनको जो है मदद कर रही हैं, कितनी प्रभावी है ये उनके शरीर पर, तो उनका भी जो है वो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस जो है शुरू हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पंजाब सरकार के इसमें हम आयुष डिपार्टमेंट में कुछ ट्रेनिंग्स हैं जो करवा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो ANMs हैं, आशा वर्कर्स हैं, और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनको आयुष की गाइडलाइंस बताई जा रही हैं। साथ ही साथ कोरोना से हमने कैसे बचाव करना है, इसके बारे में भी बार बार उन्हें जो है बताया जा रहा है ट्रेनिंग के जरिए, ताकि हम इसमें कैसे प्रिकॉशन ले सके, क्योंकि इसके अभी तक जो है
अगर चिकित्सा नहीं आई तो हमारे पास एक सुरक्षा कवच जो है वो यही बचता है कि हम इसमें कैसे अपनी जो है प्रिवेंशन कर सके। इसके साथ साथ जो आयुर्वेद है, जो हमारी सबसे भारतीय परंपरा का प्राचीन पद्धति है, इसमें हमारे दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसके बारे में जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं आज जो है हमारी प्रकृति का शोधन एक प्रोसेस ही है, ये चल रहा है कि हमारी हवा साफ हो रही है, नदियां साफ हो रही हैं। तो इसके साथ ही हमें अपने शरीर के शोधन के लिए भी जो है ये इसको आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो दिनचर्या बताई गई है वो है हमने किस तरह प्राकृतिक नियमों के अकॉर्डिंग ही अपने जो है जीवन का, स्वस्थ जीवन का यापन करना है। उसमें दिनचर्या में ये बताया गया है कि हमें समय पर सोना है और समय पर ही सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, सूर्योदय से पहले उठने का प्रयत्न करना है। कोशिश करें सुबह जल्दी उठें। इसके साथ ही जो है अपने जो मुख शुद्धि के लिए बताया गया है, दंत साफ करने हैं, उसके बाद जीवा साफ करनी है, स्नान लेना है, गुनगुने पानी से स्नान ले, और इससे ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें नहाने के लिए। और स्नान के बाद जो है थोड़ा सा उष्ण जल सुबह उठ के जरूर लें, या जो हमें जो काढ़ा आयुष गाइडलाइंस के अंडर बताया गया है, हम वो काढ़े का इस्तेमाल दिन में 2 बार करें। ठीक है, उसमें जैसे दालचीनी है, तुलसी है, काली मिर्च है और शुंठी है, इनको जो है पाउडर आप बना के रख सकते हैं और 150 ml पानी में उबाल के रोज 1-1 कप जो है इसका पी सकते हैं। इसके साथ ही दिनचर्या में ये भी वर्णन है कि आप योग और प्राणायाम इसका जो है जरूर जो है आप अपनाएं, ताकि जो आप शारीरिक रूप से जो है औषधियां ले रहे हैं, ठीक है, हम गिलोय भी खा रहे हैं, हम ये सब कुछ हल्दी भी ले रहे हैं, तुलसी भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कहा गया है विषाद रोगो वर्धनस्य, तो जो विषाद है हमारे मन से, जो सैडनेस है, डिप्रेशन है, कुछ भी इस तरह के जो भाव हैं, तो अगर वो हमारे मन में है, चिंता है, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो सप्रेस कर देते हैं, उसे डिक्रीज कर देते हैं। तो उस मानसिक विकारों को भी जो है हमें अपने से दूर रखना है, नेगेटिविटी को दूर रखना है। तो इसके लिए जो है प्राणायाम, योग, इसका जो है सहायता से हम इसको भी जो है दूर कर सकते हैं। तो प्राणायाम में जो है बताई गई है काफी जो है विधियां हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, शीतली है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ऐसे ये करके ये हमारे प्राणवायु स्रोतों को जो है उनको खोलती है। हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी जैसे है, जैसे हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती है, क्योंकि ये जो महामारी है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, श्वसन संस्थान को। तो इसके लिए ही जो है जो हम बता रहे हैं कि गुडुचि लें, आप हल्दी लें, तुलसी लें, और ये इस तरह की जो है, और साथ में योग और प्राणायाम करें। तो ये सारी चीजें हैं, 2 तरह से है, एक तो ये रेस्पिरेटरी काम करेंगी, दूसरा है ये रसायन के रूप में जो है काम करेंगी। रसायन जो है का वर्णन आयुर्वेद में ही आया है। रसायन का अर्थ है कि रसों का आयन, मीन्स के पाथ ऑफ एसेंस, मतलब हमने अपनी जो है आयु को बढ़ाने के लिए, अपनी मेधा जैसे बुद्धि है, बल है, इसको बढ़ाने के लिए जिन औषध द्रव्यों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम रसायन कहते हैं। तो रसायन के रूप में जो है हमारे पास काफी औषध द्रव्य हैं, जैसे ये गुडुचि है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, हल्दी है, तुलसी है। तो ये सभी जो है रसायन के रूप में काम करेंगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। सभी हम जानते ही हैं कि जैसे आंवला है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो हम आंवले को जो घरों में ही आराम से मिल जाए ऐसी चीजों का, और जो हमारे श्वसन संस्थान पे जो है वायरस का जो इफेक्ट ना आए, तो उसके लिए ये हम जो है आयुर्वेदा के थ्रू एक बैरियर बना रहे हैं, एक रक्षा कवच बना रहे हैं। और ये जो है बहुत ही हमारे जो आयुर्वेद है जीवन का एक अंग ही है, और इसके साथ चलते चलते हम जो इस महामारी से बच सकते हैं। तो इसके साथ ही जो है एक जो है हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट भी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ईएमआर, जो जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च, एक स्कीम है जिसके थ्रू कोई भी रिसर्चर है वो जो है अपनी रिसर्च अगर इन पे कर रहा है, तो आयुर्वेदा के थ्रू अपना प्रोजेक्ट जो है इन पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को इस स्कीम के अंडर भेज सकता है। तो ये जो है कार्य यहाँ पे पंजाब में सभी जो है आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर, डायरेक्टोरेट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से सभी जो है ये प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को स्वस्थ रख सके, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। म्यूट।
डॉक्टर चंद्रावली म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। Oh, so sorry. So sorry. तो आई वाज सेइंग कि ये बहुत ही अमेजिंग काम है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया है, जिस तरह से एलोपैथी ट्रायल में जा रही है और उसमें उसके ड्रग्स के ट्रायल हो रहे हैं। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आयुर्वेदिक ड्रग्स को भी ट्रायल में डालकर उस पे भी रिसर्च करने की सोची है। बहुत ही बड़ा कदम है, हिस्टोरिक स्टेप है ये, क्योंकि हम लोग आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं, हम लोग देखते हैं क्लिनिक पे कि किस तरह से ये ड्रग्स इफेक्टिव हैं, बट एक उनको साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत होती है ताकि लोगों में भरोसा आए और उसको किस तरह से फॉर्मुलेट करके हम इस नॉट ओनली कोरोना वायरस पर आने वाले जितने भी एपिडेमिक है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, अभी बारिशों में डेंगू आ जाएगा, बट किस तरह से इन सब चीजों में आयुर्वेदा इफेक्टिव है। दे जस्ट नीड अ साइंटिफिक प्रूफ कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे फ्रंट लाइन पे यू आर वॉरियर्स की आप लोग फ्रंट लाइन पे आप हैं, पारुल हैं, कि आप लोग पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं। यू आर लाइक मिलिट्री नाउअडेज की, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आप लोग वहां पर फ्रंट लाइन पे काम कर थैंक यू रहे सो हैं। मच। क्योंकि बाकी लोग जैसे हम लोग तो घर में बैठ के ही डरे हुए हैं कि हम लोग कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, एंड यू आर लाइक एट द फ्रंट लाइन कि हम खड़े हैं, हम फाइट कर रहे हैं इसके लिए। किसी को तो लड़ना ही है। अभी सही। Huge respect. So Parul, over to you. How like UP government is doing and how what's your work is going on? थैंक यू डॉक्टर चंद्रावली। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, आज का हमारा आयुर्वेद इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोरोना वायरस। अभी मुझसे पहले डॉक्टर आशिमा ने बहुत कुछ बताया इसके बारे में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, काफी अच्छा लगा। तो मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ सिंपल रेमेडीज बताऊंगी सबको कि क्या चीजें हैं जो हम घर में यूज कर सकते हैं जिनसे हम कोरोना वायरस से इफेक्टिवली बचे रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं आयुर्वेद की, तो मुझे लगता है किसी भी चीज को, किसी भी पैथी को के ट्रीटमेंट्स को जानने से पहले थोड़ा सा हमें पैथी को भी पता कर लेना चाहिए कि आखिर आयुर्वेद है क्या, हम जिस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग आयुर्वेद को जानते हैं। चलिए, जैसे कि टर्म है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है दो शब्दों से मिलके बना है, आयु और वेद। मीन्स आयु होता है हमारी लाइफ, और वेद हमें पता है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। तो इसी तरह से आयुर्वेद जो है ये हमारी लाइफ का वेद है, ठीक है। एंशिएंट में भी कहा जाता है कि आयुर्वेद को जो हमारा अथर्ववेद है उसी का उपवेद माना गया है। मीन्स की जो अथर्ववेद है उसके बाद उसमें अगर जब हम उसको डिटेल स्टडी करते हैं तो उसमें आयुर्वेद के बारे में पूरा वास्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और उसी में से निकल करके आयुर्वेद एक पार्ट है जो अलग से एक पैथी हमारे इंडिया में बन गया है, ठीक है। तो आयुर्वेद आई थिंक इतना सफिशिएंट है, ज्यादा हम आयुर्वेद के बारे में बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है आयुर्वेद का जो मोटिव है, जो हम लोग आयुर्वेद की पैथी में अपना मोटिव अपनाते हैं, वो क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब हमारा फर्स्ट एम जो आयुर्वेदाचार्य है या जितने वैद्य हैं हम लोग, हमारा फर्स्ट एम रहता है जो भी व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। उसके बाद देन अगर वो हमारी इस मतलब सब कुछ करते हुए भी वो डिजीज हो जाता है या बीमार हो जाता है, देन हम उसके विकार का भी प्रशमन करते हैं, या उसके जो भी डिजीज उसको है उसको भी हम क्योर करते हैं। तो फर्स्ट एम हमारा रहता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। उसी बारे में हम लोग मेरे इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि कैसे जो स्वस्थ या हेल्दी लिविंग बींग्स हैं उनको हम लोग कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं आयुर्वेद का यूज करते हुए, और कैसे कोरोना से बचा जा सकता है आयुर्वेद के थ्रू। देन उसके बाद अब जब हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम आयुर्वेद को ही क्यों चुने, जब आयुर्वेद में जैसे पूरी वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना का, अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है कोरोना के लिए। देन क्या बेनिफिट्स हैं कि आयुर्वेद की जो मेडिसिन हैं या जो भी आयुर्वेद के दिनचर्या ऋतुचर्या जैसे डॉक्टर आशिमा ने बताया, इनको यूज करने का क्या फायदा है हमें, क्या इनको यूज करके कोई इफेक्ट होने वाला है, कि वाई वी चूज आयुर्वेदा, है ना। तो मैं एक बात अब यहाँ कहना चाहती हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि आयुर्वेदा जो है पूरी तरह से इलाज है कोरोना वायरस का, कि हमने आयुर्वेद के
मेडिसिन यूज करें या आयुर्वेद को अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व किया तो हम कोरोना वायरस को से कभी हमें कोरोना वायरस नहीं होगा या पूरी तरह से वो कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट है। बट ये है कि हमारे पास आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं, बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके यूज से हम अपनी इम्यूनिटी लेवल को इतना हाई कर सकते हैं कि वो वायरस हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। बाई चांस हम कोरोना पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो हमारे साथ ऐसी कंडीशंस नहीं होंगी जो हमारे लिए फैटल बन जाएं। हम इजीली वायरस के साइड इफेक्ट्स जो भी उसके इफेक्ट्स हैं उनसे लड़ पाएंगे। ठीक है दस चलिए अब थोड़ी डॉक्टर आशिमा ने बहुत सारी मेडिसिन बताई हैं आयुर्वेद में यूज करने के लिए, तो मैं मेडिसिन की कुछ बात नहीं करूंगी। मेडिसिन आप लोग काफी जान चुके हैं। हम डेली लाइफ में से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको बताती हूँ, मैं कुछ तरीके बताती हूँ जिनके थ्रू हम अपने आसपास की चीजों को ही यूज करके कोरोना वायरस के थ्रू से के अगेंस्ट अपनी जंग लड़ सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, कोरोना वायरस को हमेशा के लिए अपने देश से दूर भगा सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यूज करते हैं रसायन। डॉक्टर आशिमा ने भी बताया रसायन का वर्णन हमारे आयुर्वेद में किया जा चुका है। ठीक है, रसायन की डेफिनेशन डॉक्टर आशिमा ने बताई कि जो हमारी आयु को इंक्रीज करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उन्हें रसायन कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म रसायन का प्रयोग बताया उन्होंने। ठीक है, तो रसायन का यूज से पहले आपको बता दूं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि जो हम पेंडेमिक वर्ड यूज कर रहे हैं या ये जो हमारा पेंडेमिक फैला हुआ है, हजारों साल पहले हमारे महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, उन्होंने अपनी बुक में पेंडेमिक का ऑलरेडी वर्णन कर दिया है ना, और इवन उससे बचने के उपाय भी बहुत अच्छे बताए। और पेंडेमिक को उन्होंने जनपदोध्वंस का नाम दिया। जो हमारा एक चैप्टर चरक संहिता अगर कोई पढ़ना चाहे इजिली अवेलेबल होती है ऑनलाइन भी, तो आप देखेंगे उसमें जनपदोध्वंस नाम से एक चैप्टर आता है। जनपदोध्वंस जो है इसका मतलब है पैंडेमिक। ठीक है, और पैंडेमिक का जो चिकित्सा उन्होंने बताई है या जो इलाज बताया है वो है स्थान का परित्याग। जैसा स्थान का परित्याग सुनने में थोड़ा हैवी वर्ड लग रहा है, बट अगर हम इसको थोड़ा जनरल लैंग्वेज में कहें तो स्टे एट होम। एंड कोरोना वायरस की भी यही ट्रीटमेंट है, स्टे एट होम। हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है घर पे रहिए, लोगों से दूर रहिए, अननेसेसरीली कहीं बाहर मत जाइए। सबसे पहला, सबसे सरल, सबसे अच्छा उपाय यही है, स्टे एट होम। ठीक है, देन रसायन उन्होंने कहा पहला तो क्या कि स्थान का परित्याग, दूसरा रसायन कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी डिजीज जो बाहर के किसी जीवाणु या कीटाणु के थ्रू हमें होने वाली है वो हमें इफेक्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो रसायन में ब्रह्म रसायन का वर्णन डॉक्टर आशिमा ने किया था। अब मैं आपको एक दूसरा रसायन बताने जा रही हूँ जिसको आप सुन के कहेंगे शायद ये रसायन होता है, ये तो हमारे पास है ना। तो सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर जो हमारे पास हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं वो है च्यवनप्राश। विंटर्स में हम लोग मोस्टली 99% लोग च्यवनप्राश का यूज करते हैं। तो च्यवनप्राश एक बहुत ही अच्छा रसायन है। इसी रसायन की तरह अगर हम यूज करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो च्यवनप्राश जो है इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट आंवला रहता है। तो आंवला वैसे भी विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें आजकल च्यवनप्राश का यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। और अमाउंट की अगर बात करें तो 10 ग्राम के अमाउंट में 10 ग्राम मीन्स की 1 से 1.5 चम्मच आप च्यवनप्राश सुबह और शाम दूध के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम काफी बूस्टअप होगा। ठीक है, और अगर च्यवनप्राश की बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है दूध भी काफी हम लोग जो अपने शुरू से ही अपने छोटे बच्चों को दूध पीने पे काफी जोर देते हैं कि दूध जो है हमारी बॉडी बिल्डअप में, हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप में काफी इफेक्टिव है। तो च्यवनप्राश के साथ दूध को यूज किया जा सकता है। एक बात ध्यान में रखनी है कि दूध को थोड़ा सा ल्यूकवार्म लेना है, हल्का गर्म दूध यूज करना है, ठंडा दूध नहीं यूज करना है। लेकिन आजकल हमारी गवर्नमेंट एक चीज को जो बहुत आयुष डिपार्टमेंट है उस पर वो डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, गोल्डन मिल्क पीजिए। गोल्डन मिल्क जब टर्म हम सुनते हैं तो हमें लगता है पता नहीं ये क्या चीज है, गोल्डन मिल्क पीजिए, गोल्डन मिल्क पीजिए। चलिए आपको बताते हैं गोल्डन मिल्क होता क्या है। बहुत सिंपल सा है, हम लोग बचपन से पीते आ रहे हैं।
जब हम हल्के से गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर देते हैं तो उसे गोल्डन दूध कहते हैं। ठीक है, तो जो हल्दी होती है वो वैसे भी एंटीबैक्टीरियल है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमें करना क्या है, जब भी हम दूध पिएंगे, एक तो उसके साथ हम च्यवनप्राश यूज करेंगे, सेकंड हमें दूध में क्या करना है, दूध में थोड़ी सी हल्दी को हमें दूध में मिक्स करना है। और हल्दी को भी मिक्स करने का जो तरीका होता है मैं आपको बता दूं, हल्दी आपको लेनी है और उसके बाद उसे थोड़े से देसी घी में भूनना है। ठीक है, भर्जित करना कहते हैं जिसे, या भूनना है। हल्दी को थोड़ा सा पका लें देसी घी में। उसके बाद उसमें से आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी हमें दूध के साथ दिन में 2 बार लेनी है। इससे हमारी इम्यूनिटी काफी इंक्रीज होगी। हल्दी हमें जो है इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता देती है। इवन अगर हमारे बाकी भी कोई चीजें हैं, हीलिंग की बहुत अच्छी पावर होती है हल्दी में। हमें अगर कोई चोट लगी है या कोई और बॉडी में और कंडीशंस भी डेवलप हो रही हैं तो उनमें भी हल्दी काफी इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट ड्रग जिसकी बात हम करने जा रहे हैं वो है आंवला। आंवला जैसे मैंने पहले बताया कि आंवला च्यवनप्राश में भी काफी ज्यादा होता है। आंवले में विटामिन सी काफी ज्यादा मिलता है, तो इम्यूनिटी वो काफी इंक्रीज करता है वो हमारी। और आंवला बात आती है कि आंवला है तो आंवला को हम अगर रॉ फॉर्म में यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं जिनसे हम आंवला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट और सबसे पहले तो ये, अगर हमें कच्चा आंवला अवेलेबल हो तो हम आंवले को ऐसे ही एज इट इज यूज करें, वो सबसे बेटर ऑप्शन रहता है कि आंवला पूरा का पूरा हमारे अंदर जाएगा, ग्रीन होगा, तो कोई भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर फिर भी ग्रीन आंवला नहीं मिलता है तो ड्राइड फॉर्म में आंवले का चूर्ण आपको इजीली किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसे यूज कर सकते हैं। और ड्राइड फॉर्म में आंवले को यूज करने में ध्यान रखना है कि हमें कितना अमाउंट लेना है आंवले का। तो आंवले का जो अमाउंट है हमारे पास 3 से 5 ग्राम, मतलब कि जो हमारा एक नॉर्मल यूज होने वाला चम्मच होता है उस चम्मच का 3/4 चम्मच आंवला हमें सुबह और शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये हमारी इम्यूनिटी को काफी बूस्ट अप करेगा। और इवन अगर हमारे पास रॉ आंवला है तो उसका एक और इफेक्टिव, वैसा खाने में बहुत टेस्ट उसका ऐसा होता है कि जल्दी खाया नहीं बनता है, तो उसका एक ऑप्शन है और है कि हम आंवले की चटनी बना लें। खाने का भी टेस्ट इंक्रीज होगा और हमारी इम्यूनिटी भी बिल्डअप होगी और हमें पता भी नहीं चलेगा हमने कोई ड्रग या कोई औषधि हमने खा ली। ठीक है, आंवले के बाद नेक्स्ट जो ड्रग है वो है गिलोय। गिलोय आजकल काफी ट्रेंड में है, मैंने देखा है कॉलोनीज में सबके घरों में लगभग रामदेव जी ने गिलोय पहुंचा दी है। तो गिलोय अगर आपके घर में प्लांट लगा है, एक बेल होती है गिलोय की, हार्ट शेप के लीव्स होते हैं उसके। अगर आप लोग पहचान सकते हैं गिलोय को और आपके आसपास या आपके घर में गिलोय लगा है तो आप क्या करिए कि गिलोय के जो टहनी है उसको 1 से 2 इंच की टहनी, लगभग 2 इंच की टहनी है, आप उसे काट लीजिए। देन उसके बाद उसे 1 गिलास पानी में उबलने को रख दीजिए। ठीक है, उबलने के बाद जब वो 1/4 रह जाता है तो आप उसे उतार लीजिए और ठंडा करके इस पानी को, इसे हम क्वाथ कहते हैं बेसिकली आयुर्वेद में, इस पानी को हमें दिन में 2 बार पीना है, खाना खाने के आधा घंटा बाद, सुबह और शाम को। और अमाउंट कितना रहेगा, 20 ml। ठीक है, 20 ml ये पानी पीना है। और इसमें क्या करना है हमें, 20 ml ये पानी रहेगा और उसमें 20 ml ही हम पानी को, नॉर्मल जो हमारा पानी ल्यूकवार्म वाटर जो है उसको ऐड कर देंगे। और खाना खाने के आधा घंटा बाद सुबह और आधा घंटा बाद शाम को हमें इसे पीना है। ये भी हमारी इम्यूनिटी को काफी बूस्ट अप करेगा। सेकंड थिंग, अगर हमें आंवला गुजुची नहीं या गिलोय नहीं मिलता है तो हम गिलोय का चूरन भी यूज कर सकते हैं। चूरन के लिए हमें क्या करना है कि 3 से 5 ग्राम चूरन, जितना अमाउंट आंवले का बताया था सेम उसी अमाउंट में गिलोय लेकर के गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम को हमें पीनी है खाना खाने के बाद। और थर्ड थिंग ये है कि मार्केट में वैसे आजकल क्वाथ बनाने के लिए चूरन भी अवेलेबल है, या गिलोय का क्वाथ भी एज सच मार्केट में मिलता है। तो अगर हम गिलोय का क्वाथ ले आते हैं तो क्वाथ को 20 ml के अमाउंट में, जैसे डिकॉक्शन मैंने अभी आपको पहले बताया कि 20 ml लेके 20 ml पानी मिला करके देन उसको सुबह शाम पीना है। इसी तरह अगर आपको चूरन का क्वाथ वाला मिल जाता है तो क्वाथ वाले को भी हमें क्या करना है, नियर अबाउट 20 ग्राम ले लेना है। उसको हमें 4 गिलास पानी डाल करके उसे उबालना है और जब तक वो उबलते उबलते 1 गिलास पानी ना बच जाए तब तक हमें उसे उबालना है मीडियम या स्लो
फ्लेम पे। देन उसके बाद हमें उसमें विद इन 24 आवर्स यूज करना है 20 ml के अमाउंट में, दिन में 2 बार। और इसको आप अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को एक साथ करा सकते हैं यूज, ठीक है। देन जो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है वो है नीम। नीम काफी इफेक्टिव और काफी अच्छा ड्रग रहा है, सदियों से हम लोग यूज भी करते आ रहे हैं। तो नीम, तो अगर आपके पास पेड़ है तो नीम के पत्ते ऐसे 5 से 10 पत्ते आप मॉर्निंग में नीम के पत्ते खाली पेट ले सके तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज ब्रेकफास्ट करने के बाद 5 से 10 पत्ते नीम के यूज करें, ठीक है। और नीम का चूरन मिल जाए तो नीम का चूरन भी ऐसे ही खाया जा सकता है। देन उसके बाद अगर नीम का जो है, जो हम लोग आजकल गवर्नमेंट भी हमें कह रही है कि जब भी नहाएं तो डेटॉल यूज करें, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डेटॉल नहीं भी अवेलेबल है तो हमें क्या करना है कि नीम के पत्तों को थोड़े से पानी में उबाल के रख लीजिए, ठीक है। देन जब भी आप नहाने जाइए तो उस उन पत्तों का या वो पानी जो है अपने नहाने वाले पानी में मिक्स करिए एंड देन नहाइए। बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल इफेक्ट है इसका, हमारी बॉडी को सभी वायरसेस और सभी बैक्टीरिया से ये सेफ रखता है, ठीक। अच्छा, अब मैंने आपको आंवला बताया, गिलोय बताया, नीम बताई, हल्दी बताई। अब मे बी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, या अगर मुझे ना आ रहा हो, मुझसे कोई पूछता तो मैं यही सोचती कि यार मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बस ये गिलोय, आंवला, हल्दी, नीम यही खाते रहेंगे क्या, खाना कब खाएंगे। तो इसका भी एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है मेरे पास कि आप लोग क्या करिए, गिलोय, नीम, आंवला, हल्दी, ये अगर आपको ड्राइड फॉर्म में मिल जाता है तो आप इन सबका चूरन बना करके या मिक्सचर बनाकर एक जगह एक बॉक्स में भर के रख लें, ठीक है। और करना क्या है हमें, आंवला, गिलोय और नीम ये इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम नीम और 100 ग्राम गिलोय लिया है तो तीनों इक्वल अमाउंट में तीनों हो गया। इसको मिक्स करिए, एक जगह रख दीजिए और इनका 1/4 जितने ये हैं, अगर 100 ग्राम तीनों डाले हैं तो 100 ग्राम का 1/4 मतलब कि 25 ग्राम के अमाउंट में हमारे पास हल्दी होगी, ठीक है। और हल्दी भी हमें कैसे लेनी है, घी में भुनी हुई। उस हल्दी का पाउडर इसमें मिला के रख लीजिए और सुबह शाम इस पाउडर में से ही एक एक चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्वाइट इजी भी होगा और हम आसानी से 3 बार में तीनों ड्रग्स दिन में 2 बार में हम अपने अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर आशिमा ने भी बताया था कि एक हर्बल टी या काढ़ा जो है हमारा आयुष डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है, पीने के लिए कह रहा है। इवन हम लोग क्वारंटीन वार्ड्स में भी अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, सबको रिकमेंड कर रहे हैं कि काढ़ा पीजिए। तो चलिए काढ़े के बारे में मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे हर्बल टी के। इसमें देखिए, पहले तो सब लोग अगर मेरी एक बात माने तो थोड़े दिनों के लिए चाय पीना बंद कर दें, और जब भी हमें चाय पीनी हो बस ये आज से प्रण ले लें कि हम ये काढ़ा पिएंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट अप होने वाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये काढ़ा बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो इस काढ़े में हम लोग डालते हैं तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, किशमिश या फिर मुनक्का। अगर आपके पास मुनक्का नहीं भी अवेलेबल है तो किशमिश डाल लीजिए, दोनों में से कोई भी चलेगा। और थोड़ी सी इसमें अजवाइन मिक्स कर लीजिए, ठीक है। उसको उबालना है। देन इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के, अगर जो डायबिटिक पर्सन है वो गुड़ नहीं यूज करेंगे, जो डायबिटिक नहीं अदरवाइज सबने, तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है। और गुड़ के बाद जब आप इसे नीचे उतार लेते हैं, इसे पका करके जब ये नीचे उतर जाएगा देन उसके बाद इसमें नींबू हमने डालना है, नींबू मिक्स करना है। और इसे हमें सुबह शाम दोपहर 2-3 बार दिन भर में पीना है थोड़ा थोड़ा। ये काफी अच्छा हमारा इम्यूनो बूस्टर है, हमें बहुत हेल्प करता है। इवन क्वारंटीन वार्ड में हमने देखा है कि जिन पेशेंट्स को ये दिया गया, इवन न्यूज में मैंने ऐसा सुना है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो इवन कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी ये हर्बल टी ट्राई की जा रही है और उनके काफी अच्छे इफेक्ट मिल रहे हैं, वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें भी इसे यूज जरूर करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम लोग तो चलो हम लोग एडल्ट्स हैं, हम लोग बहुत इजीली ये सब काम कर सकते हैं। थोड़ा कड़वा होगा या कोई बात नहीं, हम दवा समझ के पी जाएंगे। बट जो हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, इम्यूनिटी की बहुत जरूरत उनको भी है। गवर्नमेंट भी कह रही है बच्चे और ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनका बहुत ध्यान, ओल्ड एज जो लोग हैं उनका बहुत ध्यान रखना है।
तो ओल्ड एज को भी हम किसी तरह से पिला सकते हैं भाई, एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली लोग बात मान जाएंगे हमारी, बट बच्चे नहीं मानते। बच्चों के लिए क्या किया जाए, तो मैं थोड़े से आपको टिप्स देती हूँ कि बच्चों को कैसे हमें यही चीजें यूज करानी है। तो जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश हम लोग हमारे बच्चे इजीली खा लेते हैं। मान लीजिए मैंने च्यवनप्राश का आपको अमाउंट बताया है कि 10 ग्राम के अमाउंट में आपको च्यवनप्राश एक बार में खाना है और दिन में 2 बार खाना है। पर 10 ग्राम बच्चे के लिए बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है, बच्चा खाने में रिफ्यूज कर सकता है आपको। तो हमें उससे ऐसा करना है कि थोड़ा थोड़ा सा, बच्चे को जरूरी नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 ही बार खाना है, थोड़ा थोड़ा सा च्यवनप्राश थोड़ी थोड़ी देर पे बच्चे को खिलाएं। जब भी हम अपने बच्चों को एटलीस्ट 3 बार दूध तो देते ही हैं, बड़े 5-6 ईयर्स के बच्चों को, तो जब भी उसे दूध दे थोड़ा सा च्यवनप्राश दे दें। ऐसे क्या होगा कि जो मिनिमम अमाउंट है वो उसके अंदर भी चला जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने कोई ऐसी ड्रग या कोई ऐसी मेडिसिन खाई है, और इसलिए हमारा बच्चा खा लेगा। सेकंड, गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क का भी यही है कि बच्चों को जब भी दूध दें तो हल्दी थोड़ा कम अमाउंट में डालें, क्योंकि हम दूध हार्डली 1 और 2 टाइम लेते हैं, बट बच्चे 3 से 4 बार दिन में लेते हैं। तो जब भी उनको दूध दें थोड़ी सी हल्दी डाल के, ताकि उसमें बिटरनेस ना आए हल्दी की वजह से दूध में, उसको बच्चों को पिलाएं तो बच्चे इजीली पी लेंगे। तो जो मैंने गिलोय का काढ़ा आप लोगों को बताया, या फिर जो भी ड्रग्स डाल के अगर आप कुछ और भी काढ़ा बनाते हैं, तो बच्चों को देते वक्त हमेशा काढ़े को बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में रख कर लें। इतना डाइल्यूट कर लें कि उसका टेस्ट ज्यादा ना आए बच्चे को, और जो हम लोग दिन में 2 बार पी रहे हैं बच्चे को 3 से 4 बार दें। और एक चीज का ध्यान रखिए कि हम काढ़ा पानी मिला के पीते हैं, पर बच्चों को जब भी काढ़ा दें तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला दें। जब आप शहद मिला देंगे तो उसमें मीठा टेस्ट आ जाएगा और बच्चे इजिली उससे हंसते हंसते पी लेते हैं वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट, एक स्पेसिफिक ड्रग है जो बच्चों के लिए है, मे बी अवेलेबल अगर आपके पास हो, या आपके आसपास अगर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनसे आपको मिल सकती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है। बाल चतुर्भद्र चूर्ण, ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। मैंने अपनी डेली जो ओपीडीज होती हैं उनमें देखा है, जिन भी मेरे पास जो छोटे बच्चे आते हैं 1 ईयर से लेकर के 17 ईयर्स तक के बच्चे, उन सबको मैं जो भी मेडिसिन देती हूँ उसके साथ ये बाल चतुर्भद्र चूर्ण जरूर देती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि बाल चतुर्भद्र चूर्ण एक ऐसी ड्रग है जो बच्चे में होने वाली कोई भी डिजीज हो उसको 100% क्योर करने में इफेक्टिव है। ये बच्चे की इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। बच्चे को हल्के फीवर, कोल्ड, कोई भी सिम्टम आ रहे हो तो बाल चतुर्भद्र चूर्ण को बच्चे को अगर आप देते हैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, तो उसको काफी इफेक्टिव रहता है बच्चा, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, बच्चे इसे शहद के साथ इजीली खा लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये तो ड्रग्स हो गई बच्चों के लिए। और कोशिश करें कि जब आप प्राणायाम योगा करें तो अपने बच्चों को अपने साथ बैठाएं, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सिखाएं, इससे वो भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे प्राणायाम योगा में, उनकी भी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं कहना चाहती हूँ डायबिटिक पर्सन्स और हाइपरटेंसिव पर्सन्स के बारे में, कि जो जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज है या जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, उनके ऊपर इस वायरस का इफेक्ट होने का काफी जो खतरा है। हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है डायबिटिक पर्सन, हाइपरटेंसिव पर्सन जो है वो ज्यादा इसके चपेट में आ रहे हैं और फैटल हो जाती है उनके लिए कंडीशंस। तो उनको भी कोई खास मतलब ये नहीं है, उनको भी अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने पे ही ज्यादा जोर देना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया था, गिलोय, हल्दी, नीम, आंवला, यही वाला चूर्ण अगर आप यूज करते हैं तो आपको भी इम्यूनिटी बूस्टअप में काफी सहायता मिलेगी। और आपको बताया था मैंने कि च्यवनप्राश जो च्यवनप्राश आपने यूज करना है वो शुगर फ्री च्यवनप्राश होना चाहिए। नॉर्मल च्यवनप्राश का यूज डायबिटिक पर्सन्स नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें बहुत। पारुल, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ, अब आ अब आ रही। रही है? पहले आ रही थी? हाँ, आ रही थी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैं डायबिटिक पर्सन्स के बारे में बात कर रही थी कि डायबिटिक पर्सन्स जो है उन्हें थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। पहला तो जो च्यवनप्राश को दूध के साथ यूज करने को कहा गया है, उसमें वो जो च्यवनप्राश यूज करेंगे वो शुगर फ्री च्यवनप्राश होना चाहिए, उन्हें नॉर्मल च्यवनप्राश का यूज नहीं करना है। सेकेंड थिंग ये है कि उन्हें जो गिलोय, हल्दी और आंवला,
ये 3 चीजों को मिक्स करके, नीम हम अभी के लिए यूज कर सकते हैं, नीम भी जो मैंने बताया था अभी कि नीम को आप अभी ये पैंडेमिक के टाइम में आप नीम यूज करिए, अदरवाइज नीम का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है डायबिटीज में। पर गिलोय, हल्दी और आंवला इसको आपने रेगुलर बेसिस पे यूज करना है सुबह और शाम को, और कोशिश करिए कि जो डायबिटिक है वो खाली पेट सुबह उठ करके सबसे पहले ये चूरन यूज करें, देन उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करें, ठीक है। देन जो हाइपरटेंसिव पर्सन हैं उन्हें भी ये सब यूज करना है। इसके साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं कि अपना जो नमक है इसको सैंधव लवण या सेंधा नमक जो होता है उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से आपको ना भी टेस्ट अच्छा लगे तो आप एक काम करिए कि अपना जो भी सिंपल नमक है उसमें हाफ क्वांटिटी में वो रखिए, देन हाफ क्वांटिटी में सेंधा नमक मिक्स कर लीजिए। इससे थोड़े दिन आप ऐसे यूज करिए, आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर धीरे धीरे सेंधा नमक भी अच्छा लगने लग जाएगा। और आई थिंक सेंधा नमक अभी सबके पास अवेलेबल होगा ही, नवरात्रि बीते हैं, व्रत तो रखा ही गया था, तो सेंधा नमक भी सबके घर में इजिली इसमें अवेलेबल होगा ही, ठीक है। और उसके बाद ये तो हमारी ड्रग्स हो गई जिन ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं। और देन फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात करें तो प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है इस पेंडेमिक को दूर करने के लिए। तो प्राणायाम होता क्या है एक्चुअली, हम बात करते हैं प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो अगर हम प्राणायाम वर्ड को ही देखें तो ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना है, प्राण और आयाम, है ना, जो हमारे प्राणों को, प्राणों इन द सेंस कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा लंग्स एंड इवन जो हमारा पूरा नोज नॉस्ट्रिल्स हो गए, देन ट्रैकिया है, इन सबको हमारे आयुर्वेद में प्राण का की संज्ञा दी जाती है या प्राण कहा जाता है। तो जो भी ऐसी क्रियाएं हैं या ऐसे चीजें हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को बूस्ट करें, उनकी पावर को बढ़ाएं, उन्हें हम प्राणायाम कहते हैं। तो हम जो और हमें पता है कि जो कोविड-19 वायरस है वो मेनली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, हमारे लंग्स पे ही इफेक्ट डाल रहा है। इसके थ्रू हमें निमोनिया एंड जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फैटल बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्राणायाम का डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी उसकी बढ़ेगी प्राणायाम से भी, और उसे बूस्टअप करने में काफी हेल्प मिलेगी इस डिजीज से, ठीक है। तो प्राणायाम के बारे में बहुत ज्यादा अभी इस सेशन में नहीं बताएंगे, फिर भी 2-4 नाम ले लेते हैं आपके लिए कि जैसे अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, और बाकी आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो बाबा रामदेव हैं और बहुत अच्छे योगा प्रैक्टिशनर्स और भी हैं जो अपनी वीडियोस डालते हैं, उनसे आपको बहुत सारी लाइव वीडियोस मिलेंगी जिनसे आप प्राणायाम उनको देख के कर सकते हैं। और एक चीज और है कि प्राणायाम करिए बट गलत तरीके से मत करिए प्लीज, क्योंकि इफेक्ट होना और उसका नेगेटिव इफेक्ट होना ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं। हमें अगर कोई काम करना है तो सही से करना है। मेरे लिए प्राणायाम करते वक्त ध्यान रखना है, तो जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं पहले उसकी विधि को आप समझें, उसके बाद आप उसे अपने ऊपर ट्राई करें, ठीक है। देन थोड़े से मैं 1-2 डिजीजेस के लिए टिप्स थोड़े से देना चाहूंगी जो हम घर में ही अपना सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जा रहा है लोगों को, लोग बहुत डर जाते हैं कि यार खांसी हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कोरोना हो गया। तो खांसी मैं बताना चाहूंगी, खांसी हमें नॉर्मल वायरस में भी हो सकती है। तो वायरस तो कॉमन कोल्ड को वायरस कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमें खांसी हो रही हो तो हमें कोरोना वायरस ही हो या हम कोरोना पॉजिटिव ही हो। तो मान लीजिए किसी को सूखी खांसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपल सा टिप है, आपकी सबके घर में लौंग होती होगी, लौंग को लेना है, एक लौंग को लेकर के अपने मुंह में रख के थोड़ी देर उससे उसका जस्ट डिकॉक्शन जो निकलना है उसे मुंह में रखना है, और जो डिकॉक्शन निकल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा च्यू करना है, काफी इफेक्टिव होता है हमारी खांसी के लिए। सेकंड थिंग है कि शहद के साथ थोड़ा सा अदरक का रस मिला करके, अदरक कूट लीजिए, उसका रस निकालिए और उसे शहद के साथ मिला लीजिए और दिन में 3-4 बार इसका प्रयोग करिए, ये भी काफी इफेक्टिव है सूखी खांसी दूर करने में। और अगर आप कर पाए तो एक तरीका और है, आपको क्या करना है, लौंग, मुलेठी और अदरक, इन तीनों चीजों को लेना है, इनको हमें पीस लेना है एक साथ, लौंग, मुलेठी, अदरक, इन तीनों को लेकर के हमें एक साथ पीस लेना है, इसमें हमें उल्टा है और इसको थोड़ी देर हमें आंच पे पकाना है। जब हम गुड़ डालेंगे तो गुड़ थोड़ा लिक्विफाइड हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा,
इन तीनों को मिला के गुड़ को पिघला लेना है इनके साथ आंच पे। देन उसके बाद जल्दी जल्दी इनकी थोड़ी छोटी छोटी सी गोलियां बना के रख लीजिए। और जब भी किसी को सूखी खांसी आती है तो खांसी को दूर करने के लिए, ठीक है, कि कैसे आयुर्वेदा में हेल्प मिलती है इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए तो कोरोना वायरस के। दिन थोड़ी से ज्यादा नहीं बहुत बोलूंगी, थोड़े से कुछ हेल्दी रहने के टिप्स भी हैं जो हम अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है कि 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। 6 से 8 घंटे की जब हम नींद लेते हैं हमारा ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है और अगले दिन के लिए हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। तो 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, खाने में सुपाच्य पौष्टिक आहार, मतलब सुपाच्य मीन्स इजीली डाइजेस्ट होने वाले, कोशिश करिए इस समय में नॉनवेज डाइट ना ली जाए, हरी सब्जियों का प्रयोग करिए जो भी इजीली अवेलेबल हो, अपने सीजनल फ्रूट्स सीजनल वेजिटेबल्स का यूज करिए, ठीक है, और सिट्रस फ्रूट्स का ज्यादा यूज करिए क्योंकि सिट्रस या जो भी कहते हैं खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू यूज कर सकते हैं आप, नींबू की शिकंजी बना लीजिए, संतरा यूज किया जा सकता है, मौसमी है मौसमी का यूज किया जा सकता है, इन सबको हमें यूज करना है। देन अच्छा, नींबू से आप एक और चीज आप कर सकते हैं कि नींबू को थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के और उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए और इसको उबाल करके हमें इसे पीना चाहिए, तो इससे भी इम्यूनिटी बूस्ट होने में काफी हेल्प मिलती है। और नेक्स्ट एक और इम्यूनिटी बूस्टर है कि लहसुन होता है, जो लहसुन थोड़े से हमें 2-3 क्लोव लहसुन लीजिए, उसमें काली मिर्च मिलाइए और थोड़ा सा ही अदरक मिलाइए, इन तीनों का पेस्ट बना लीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, सेंधा नमक मिलाए तो ज्यादा अच्छा है, और चटनी की तरह इसको अपने खाने के साथ खाइए, ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। अच्छा, आप इसमें एक प्रयोग और कर सकते हैं कि इसी के साथ आप आंवला मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो 4 चीजें जो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स एक साथ एक चटनी की फॉर्म में आ जाएंगे, उनका टेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और हमारे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और ठीक है, मोटा अनाज यूज करिए खाने में, मतलब कि जैसे ज्वार है, बाजरा है, और ज्वार बाजरा मक्का हो गया, चना हो गया, इनको यूज में अपने लाइए डेली लाइफ में, इनका आटा बना के रख लीजिए। कोशिश करिए कि अलग अलग इनको मिक्स ना किया जाए, जैसे ज्वार है तो ज्वार अलग रहे, बाजरा अलग रहे, मक्का अलग रहे, पर फिर भी अगर आप नहीं खा पा रहे हैं इनकी रोटी तो आप इन सबको एक सेम अमाउंट में लेकर के मिक्स करके रख लीजिए और इनकी रोटी को खाने का की रूटीन में अपने लाइए। या ये भी काफी हमारा एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं ये, ठीक है, हमारा लिवर इससे सही रहता है, तो इन्हें हमें यूज करना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूंगी, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट मुझे लगता है वो है स्ट्रेस। अपनी लाइफ में स्ट्रेस को नहीं आने देना है, डिप्रेशन को नहीं आने देना है, क्योंकि डिप्रेशन अगर हमारी लाइफ में रहेगा तो हम खाना चाहें जितना अच्छा खा लें वो हमारी बॉडी को लगेगा ही नहीं, है ना। हम और जब खाना ही नहीं बॉडी को लगेगा तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, और जो डिक्रीज इम्यूनिटी वाले लोग हैं उनमें कोरोना के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कोशिश करना है कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना है। बहुत अच्छा टाइम मिला है, लॉकडाउन है, ऑफिसेज बंद हैं और मतलब मोस्टली मेन काम हमारे बंद हैं। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, खेलिए कूदिए, मस्ती करिए, घर में अच्छा टाइम स्पेंड करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है। स्ट्रेस को अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं आने देना है। इसके साथ एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कि आपको डॉक्टर आशिमा ने भी बताया था कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक आयुष का एक ऐप उन्होंने किया है, जिसके थ्रू वो बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसके कोविड-19 के बारे में। तो ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट ने भी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष कवच ऐप। तो आयुष कवच ऐप को कोई भी डाउनलोड कर सकता है अपने फोन में। आयुष कवच ऐप काफी अच्छा है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी डेली रूटीन के बारे में, योगा, प्राणायाम, आपकी हेल्थ के टिप्स एंड बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने उसमें इंक्लूड करी है। और सेकंड थिंग ये है, उसका सबसे एक अच्छा
प्लस पॉइंट ये है कि आपको अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं आपके हेल्थ के बारे में, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस पर पुटअप कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख के भेजिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स, मेनली आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स जो हैं आपको उसका आंसर देंगे, और इफेक्टिव है काफी। बहुत से लोग उस पर मैसेजेस कर रहे हैं, हम लोग आंसर्स भी देते हैं। ठीक है, तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि सब लोग गूगल प्ले स्टोर से जा करके आयुष कवच ऐप को अपने अपने फोन में डाउनलोड कर लें और उसका पूरा यूज करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक बंद करती हूँ। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और अगर कुछ होता है तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स तो है ही, हम लोग देख लेंगे। Pretty awesome. Thank you so much, पारुल। कितने सरल शब्दों में कितने अपने इम्यूनिटी की बातें की हैं सबके साथ, कि मतलब हम छोटी 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 चीजें हमारे सामने हैं, हमारे किचन में है, हम उससे कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब हमें पता होता है, बट एक होता है कि उसको कैसे मिक्स करना है उन चीजों को, और कब और कैसे लेना है, उसी का इफेक्ट पड़ जाता है जी। तो बहुत ही बढ़िया था। एक क्वेश्चन डॉक्टर निर्मल ने पूछा हुआ है, उन्होंने कहा है कि च्यवनप्राश जनरली विंटर्स में लिया जाता है, और जिस तरह से अभी हम सब रिकमेंड कर रहे हैं कि च्यवनप्राश इस मौसम में भी लीजिए, तो क्या कोई भी 365 डेज ले सकता है च्यवनप्राश? एक्चुअली क्या है कि विंटर्स में हम लोग लेना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि विंटर का सीजन ऐसा रहता है जो कोल्ड एंड कफ को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, तो कोल्ड कफ के लिए हम लोग च्यवनप्राश लेते हैं। बट इस समय क्या है कि समर का टाइम तो है, बट हमारे पास एक कंडीशन है कि हमारे पास इसमें पेंडेमिक फैला हुआ है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करने पे ध्यान देना है। तो विंटर में भी हम च्यवनप्राश, समर में भी अगर च्यवनप्राश लेते हैं तो कोई उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार में 10 ग्राम का अमाउंट लेने पे मुझे कुछ मतलब आपको कुछ अनइजीनेस फील हो रही है या हॉटनेस फील हो रही है बॉडी में, तो आप उसको डिवाइडेड अमाउंट में ले लीजिए। एक बार न लेके दिन में 3 या 4 बार में 5-5 ग्राम के अमाउंट में ले सकते हैं। उसका कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है कि समर में लेने पे कुछ बॉडी को ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। सिर्फ यही एक आता है कि हमें थोड़ा सा गर्माहट सी फील होती है, तो उसका डिवाइडेड डोजेस में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच पारुल। एक मेरा क्वेश्चन है, आशिमा से पूछना चाहूंगी। तो आशिमा, जिस तरह से हमने अब इतनी सारी हम गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि सिम्टम्स ऐसा कोई पेशेंट्स को हम उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिम्टम्स को सप्रेस कर देगा और कल गलती से कोई पॉजिटिव हो जाता है और वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाकर यही काढ़ा और यही हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं वही को जारी रखेगा, तो ये कोविड की इन्फेक्शंस का डिटेक्शन तो नहीं डिले कर देगा? ये जो है कोविड की इन्फेक्शन जो भी आज महामारी चल रही है, उसके साथ जो हम ओपीडीज में मेडिसिन दे रहे हैं, उसके साथ हम पेशेंट्स को ये भी बता रहे हैं कि अगर उन्हें कोई फीवर हो रहा है या कुछ ऐसा उन्हें लग रहा है, बॉडी एक हो रही है, तेज हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, जो कि कोरोना के जो है सिम्टम्स में एक जो है मुख्य जो है एक लक्षण पाया गया है, तो हम उन्हें कहते हैं कि अनुग्रह करते हैं कि वो जाए सरकारी अस्पताल में जाके अपना टेस्ट जरूर कराएं। ऐसे जो है हम साथ साथ पेशेंट्स को ये भी गाइड कर रहे हैं कि अगर जो है इसकी जो महामारी को जो आगे से फैलने से रोकने के लिए उन्हें हम कह रहे हैं कि ये दवाइयों के साथ जो उनकी इम्यूनिटी है वो तो बढ़ाई जा रही है उसके साथ, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें इस बात से भी अवगत कराया जा रहा है कि आप जाकर, अगर हमें लगता है कि इस पेशेंट में कि इसमें उनको लग रहा है कि हमें फीवर हो रहा है और वो नहीं ठीक हो रहा 3 दिन 4 दिन से, तो उन्हें जो है आगे सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है कि आप जाकर जो है इसका जो है टेस्ट कराएं, ताकि हम इस महामारी को रोक सके। थैंक यू सो मच आशिमा। एक क्वेश्चन है डॉक्टर निर्मल की तरफ से है, पारुल आपके लिए है, कि वो पूछ रही हैं कि आयुष कवच ऐप जो है वो क्या एप्पल iOS में अवेलेबल नहीं है, वो ढूंढ नहीं पा रही है। इज इट ओनली एंड्रॉइड एप्लीकेशन? एक्चुअली मुझे इसका कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं फिर भी अगर आप कांटेक्ट नंबर दे दें अपना तो मैं आपको पता करके बता सकती हूँ कि, क्योंकि हम लोग के फोन में तो इजीली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हम लोगों ने कर लिया था। तो मैं फर्दर मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगी ये आपके थ्रू आयुष कवच ऐप पे कि इसको और कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, और मुझे जैसे ही आंसर मिलता है मैं डॉक्टर चंद्रावली के थ्रू आप तक इसका आंसर पहुंचा देती हूँ। डॉक्टर चंद्रावली, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। हाँ जी, प्लीज कृतिका जी, आपकी आवाज कट रही है। आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर,
I would like to ask Dr. Akshita that in case of, I'm also an EMO, I'm very good अक्षिता colleague शर्मा of Dr. Ashima. The only thing is that what we are looking on is being an Ayurvedist. Ayurveda is not only confined to the medicine part. And the second thing is that we have been listening all around according to the Ayush guidelines regarding Chyawanprash. Basically, in Ayurveda, if the Pachak Agni is not good or a Mand Agni is there, we can't have any type of rasayan on a very daily basis. So my question would be to the Akshita that being Ayurvedist, we can't just randomly go for it for anyone. Because in Punjab, we are having the consent form and other form in which even if we are giving to the frontline workers, we are asking few history, I mean, taking history of the patient so that we should justify giving all these immunity booster medicines to all. So what would Dr. Akshita say on this? Ashima, yeah, Dr. अक्षिता Ashima. एक्चुअली माय नेम मेरा नेम मेरी बेटी की नेम से अच्छा, डिस्प्ले हो रहा है okay. Okay, fine, fine. चंदाबी प्लीज आप ये क्वेश्चन रिपीट करिए, मुझे वॉइस बहुत कम आ रही थी, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया है. I think Dr. Chandravali, did you get my question? Yeah, पारुल बेसिकली कृतिका जी ये पूछ रही हैं कि जिस तरह से ये जो हम रसायन औषधियां बता रहे हैं, अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है या फिर उसकी जठराग्नि मंद है तो हम उनमें ये रसायन औषधियां रिकमेंड नहीं करते हैं. तो क्योंकि ये जिस तरह से पंजाब में ये चीजें जो हैं ये लोग अपने परफॉर्मा में पुट अप कर रहे हैं कि उनकी अग्नि कैसी है, उनका मतलब वात पित्त कफ हम भी पूछते हैं, तो उसके हिसाब से रसायन रिकमेंड किए जाते हैं. बेसिकली उसका मिसयूज भी नहीं होगा, जुडिशियसली यूज भी होगा. जी ओके ओके. नहीं जो मैंने अभी आपको बताया है तो एक हम मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी जठराग्नि मध्यम ही होती है. तो ये जठराग्नि कम जठराग्नि ज्यादा वाला जो केस है वो हम एक्सेप्शनल या फिर कुछ एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनकी हमारे हमें जठराग्नि बहुत मंद मिलेगी या बहुत ज्यादा मिलेगी, तो हम एक्सेप्शनल मान के एक मीडियम या मध्यम, जो भी बात मैंने करी है मध्यम अग्नि वाले लोगों के लिए की है. बाकी जो एक्सेप्शनल केस अगर आते हैं तो फिर क्योंकि वी आर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स तो हम अपने अकॉर्डिंग उनकी अग्नि धातु की को विषमता ना हो इन द फ्यूचर, सो दैट हमें उसको बहुत सहजता से इस्तेमाल करना होगा. जी 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 जी. तो हम उनका अमाउंट जैसे हमने बच्चों में डोज रेगुलेट करी कि हाँ थोड़ा अमाउंट में देना है, तो अग्नि को देख करके हम उनकी डोज रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि च्यवनप्राश कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि इतना ही खाना है या इतना नहीं खाना है. आप अपनी अग्नि के अकॉर्डिंग कितना भी उसे यूज कर सकते हैं. नॉर्मल इंसान को अपनी अग्नि के बारे में ज्यादा परिचय नहीं होता है, ठीक है, वो अपने एपिटाइट के औचित्य से ले लेगा, बट समवेयर अति मात्रा हुई तो वो नुकसान भी करेगी. दिस इज व्हाट आई वांट. जैसे मैंने मैक्सिमम डोज आपको 10 ग्राम बताई है और इसके साथ मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि हाँ समर में लेना है कि नहीं लेना है. तो वो मेरी च्यवनप्राश का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनका यही रहता है कि जब भी च्यवनप्राश अगर ज्यादा अमाउंट में लो तो उन्हें हीट बहुत फील होती है और थोड़े किसी किसी को लूज मोशंस जैसे होते हैं. तो अगर आपको लगता है कि मुझे हीट जैसा फील हो रहा है च्यवनप्राश लेने के बाद या लूज मोशन लग रहे हैं, तो हम उसकी डोज को कम कर देते हैं, हाफ कर दीजिए. अगर हाफ में भी आपको लग रहा है कि नहीं इफेक्टिव मतलब नहीं मुझे कुछ इससे फायदा मिल रहा है, तो आप च्यवनप्राश को ड्रॉप कर सकते हैं, मत लीजिए च्यवनप्राश. और भी जो ड्रग्स हैं उनका यूज करिए. I was not telling only about Chyawanprash. Basically, I was asking about even for example, we are giving Brahm Rasayan, any रसायन औषधि. हाँ एनी रसायन किसी के भी बारे में किसी भी रसायन औषधि जो भी चीज देखिए हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लेना चाह रहे हैं, बट उसका नेगेटिव इफेक्ट अगर हमारे ऊपर आ रहा है तो वो जो भी हमारा पर्पस था वो तो फेल हो रहा है ना. इम्यूनिटी बूस्ट तो तभी होगी जब वो हमारे अंदर रहेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा, बॉडी में जाएगा, है ना. अगर वो जा ही नहीं रहा है और हमारी बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है तो मीन्स हमें वो कर रहा है, तो हमें उसे बंद करना ही मुझे लगता है कि बेस्ट वे होगा कि हम उसे छोड़ करके जो बाकी ऑप्शंस हैं उनकी तरफ जाएं. बार ये कहना जरूरी हो जाता है कि हम जो भी आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को इम्यूनिटी को प्रिवेंट करने के लिए आयुष गाइडलाइंस को भी बोल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा हमारे इस वक्त आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर्स गवर्नमेंट सर्विस में जितने भी हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, सो दैट जितने भी बैनर्स हम प्रिंट आउट करा रहे हैं या हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं, उसमें जितना भी हम उनको कन्वे कर रहे हैं वो आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के चिकित्सा परामर्श से ही उसको लिया जाए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा.
नहीं, एक्चुअली यहाँ हम लोग यूपी में भी जो क्वारंटीन वार्ड्स में हमारे जो लोग आके ठहरे हुए हैं, बाहर दूसरे स्टेट से आए हैं, तो उनके ऊपर हम लोग जो भी मैंने अभी मेडिसिन या जो भी ड्रग्स आप लोगों को बताए, इवन च्यवनप्राश बताया, ये सब उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी तक तो कोई ऐसा कोई पेशेंट या ऐसा कोई नहीं आया सामने जिसको इसका कोई एडवर्स इफेक्ट रहा। जी तो यहाँ तो अभी तक Hopefully कोई we एडवर्स are इफेक्ट इसका नहीं आ lucky रहा है, that तो हम लोग इजीली इसको कर पा रहे हैं, दे पा रहे we हैं are पेशेंट्स lucky we are Indians and हमारी जो ट्रेडिशनल पैथी इम्यूनिटी है, बहुत परंपरा है, हाई होती है। हम साथ में हो चुके हैं। क्योंकि वी इंडियंस, हम जैसे ये जो हर्ब्स की बात हो रही है, हल्दी है, जीरा है, ये सब चीजें हमारी डाइट में ही इंक्लूड होता है। इसके बिना तो हमारा मतलब खाना भी नहीं बनता है। तो वी आर इंडियन, हमारे पास ही हम ये सब चीजें जो है हमारे नेचर में ही है ये सब यूज करना। सो या ग्रेट, इट वाज ग्रेट सेशन, प्रीटी अमेजिंग। सो आई डोंट फाइंड एनी अदर क्वेश्चंस, सो थैंक यू डॉक्टर आशिमा एंड डॉक्टर पारुल अपना समय देने के लिए और हमें इतनी डिटेल में इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। और आप लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, आई विल अगेन से वी आर रियली प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर द वॉरियर्स जो वहाँ पर बिल्कुल फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई विल थैंक ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड आवर स्पीकर्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सो स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। बाय बाय, थैंक यू। Bye-bye.